My aim is to be at least invest 10K per month. I have given 7 to 8 years in this industry. अगर देखा जाए यूजुअली इग्नोरेंस जो होता है वो मोस्टली जो होता है वो एजुकेशन के लिए ही होता है अगर देखा जाए तो आज की लाइफ में ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है कि जब का जब देखा जाएगा बिकॉज नाउ डेज इफ यू सी दैट डोनेशन इज हायर एंड हायर इंक्रीजिंग एज पर द इन्फ्लेशन. ठीक है, जहाँ पर लोगों की पूरी सेविंग्स खत्म हो गई. Welcome to EduFund, Vakar, and thank you so much for coming. You're welcome. Yeah. So, let's start from the beginning, which is to sort of understand your background story, your education experience. So, I lost my parents too early. Okay. So, I have completed my studies with the help of the Helping Hands from some trusts. Okay. Those who are helping to such type of students. And as well as my sisters, those who are working at that time, and some of my relatives. Exactly, I have completed my overall studies, which is I have done graduation from BCom. Okay, so it has been completed very successfully. But yes, not much difficult, but yes, we can say a little bit difficult. Right. Related to the financial issues. So you mentioned that school time mein you were taking the help of a trust, and your sister, she was also helping you with the finances. What about your college education? So at the time of college, I have started working. Okay. So like telecommunications. As you're aware, yes, it is also impact to my college life because I have selected such college where attendance is not mandatory. Okay, so due to exams time I take holidays. Okay. So for that's the reason sometimes I attend the college lectures. So मतलब आपको अपने जो एजुकेशन का जो कॉलेज का पूरा एक्सपीरियंस था, decisions थे, for example if you are going to a college where you require to attend at least 80% of the classes, or do you have to go to a college where attendance is not very necessary. So ये decision आपको लेना पड़ा ये सोच के कि आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है क्योंकि आपको उस कॉलेज के लिए अफोर्ड भी करना है, तो इससे आपका स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस भी अफेक्ट हुआ होगा, राइट? सो द थिंग ऐसा था कि मतलब मैं मोस्टली जो जॉब्स स्टार्ट किया था फर्स्ट इनिशियल पे, तो जब मुझे वेकेशंस मिला था तब मैंने वो जॉब स्टार्ट किया. ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ जितना टाइम था, स्मॉल अमाउंट से जो मुझे मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए काम आ जाए और कुछ एजुकेशन फीस के लिए जो काम आ जाए, दैट्स इट. और आफ्टरवर्ड्स जैसे मैंने बताया कि स्कूल्स के टाइम पर भी मुझे ट्रस्ट एक हेल्पिंग हैंड था, वैसे कॉलेजेस के टाइम पर भी था, और इवन सिस्टर्स आर हेल्पिंग मी. Okay. So you have been through this experience yourself, right? And I'm sure you learned a lot from your own experience. Right. So you have a son right now. Right. And how old is he? So right now is almost around 23 months. Right. So he's really young right now. Right. So based on your personal experience, I'm sure you know the importance of advanced planning. Correct. For someone's education. तो अभी आपकी अपने बेटे की एजुकेशन के लिए सेव करने के लिए क्या सेविंग अप्रोच है आपकी? ऐसा था कि पहले मैंने अभी तक सेविंग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे पर्सनल लोन्स थे जो मुझे फुलफिल करना था. मतलब देखा जाए तो इनकम सोर्स ऑफ इनकम से जो इनकम थी, इट इज़ नॉट फुलफिल टू मैनेज ऑल द एक्सपेंसेस एज वेल एज टू डू सेविंग्स. सो करंटली यस, आई हैव स्टार्टेड इन सेविंग्स. Okay. So my aim is to be at least invest 10K per month in mutual fund schemes. Okay. Because mutual fund I have given a lots of time. As like I have given 7 to 8 years in this industry. Okay. So then afterwards I have got an opportunity that right now currently I am saving some amount and which I am investing in mutual fund schemes. So which will be help me to at least accumulate some amount, as well as it is utilization has been done as like an investment. And afterwards on investment at the time of maturity, whenever the funds required, I'll get returns as per the current valuation. Right, exactly. So you are saving through mutual funds, but are you saving for your child's school education? Because he's just 2 year old, right? So abhi to school bhi start nahi hua hoga.
बट होने वाला है, तो आप उसकी स्कूल एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हो, उसके लिए प्लान्स है या फिर आपने कॉलेज के लिए भी प्लान स्टार्ट कर दिया? नहीं, तो अभी तक तो मैंने ऐसा कॉलेज के लिए कोई प्लानिंग स्टार्ट नहीं किया है ट्रूली स्पीकिंग। क्योंकि ऐसा है कि अभी मुझे फर्स्ट उनका प्री प्राइमरी होगा, प्ले ग्रुप होगा, ठीक है। जब मुझे यहाँ से थोड़ा, बिकॉज अभी मैं इतना, मतलब 2 साल का बच्चा है मेरा, ठीक है, और मुझे इतना टाइम नहीं हुआ है फादर बन के कि और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे जाके कैसे मैनेज करना, तो टाइम टू टाइम इनबिल्ड हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली आ जाती है और उसको फुलफिल करना भी सीखना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो कॉलेज के लिए तो अभी तक मैंने कोई ऐसा प्लानिंग नहीं किया है। यस, बट आई एम प्लानिंग फॉर स्कूल लाइक प्री प्राइमरी एंड ऑल, दैट्स इट। ओके, so something very relatable, I think you just mentioned that अभी वो सिर्फ 2 साल का है। Correct. और आप नए पेरेंट बने हो, तरीके से नया ही समझ लो, तो आपको पता नहीं है कि क्या क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास आएंगी फाइनेंशियली। तो धीरे धीरे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये भी चीज़ें हैं, अब इसमें भी खर्चा लगेगा, इसमें भी खर्चा लगेगा। तो ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं है या वो इसके बारे में सोचते नहीं है? ये ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो आप एज समवन हु इज़ करंटली सेविंग फॉर हिज चाइल्ड्स एजुकेशन, व्हाट आर द थिंग्स दैट पेरेंट्स यूजुअली जस्ट इग्नोर? देखिए, अगर देखा जाए यूजुअली इग्नोरेंस जो होता है वो मोस्टली जो होता है वो एजुकेशन के लिए ही होता है, अगर देखा जाए तो। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी का माइंड होता है कि जब का जब देखा जाएगा। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। आज की लाइफ में ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है कि जब का जब देखा जाएगा, ठीक है। जो लिखा है वो होगा, दैट्स ग्रेट, ठीक है, बट वी हैव आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू मैनेज इट। यस, तो हमें मोस्ट प्रोबेबली एजुकेशन के लिए ऐसा है कि जो अभी रिसेंटली पेरेंट्स बने होंगे या जो रिसेंटली जिनका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ होगा, ठीक है, तो हार्डली उनका भी स्टडीज हुआ होगा, ठीक है। तो स्टडीज होके मैक्सिमम 3 to 4 years हुआ होगा या वी कैन एक्सपेक्ट 5 years, और उन्होंने शादी किया होगा, ठीक है। तो वो खुद का एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेंसेस उनके पेरेंट्स ने अफोर्ड किया होगा उनके लिए, ठीक है, और रिसेंटली क्या है इतने 5 years के स्पैन ऑफ पीरियड में वो क्या चेंजेस आया है फीस को लेकर, अदर स्टफ्स को लेके, और क्या क्या न्यू एक्टिविटीज स्कूल्स में आ रही है उनके टाइम पे जो नहीं थी, उनके पेरेंट्स के टाइम पे जो नहीं थी, जो अभी स्लोली वो आगे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली। तो उस बेसिस पर खुद का एग्जाम्पल लेकर अगर थोड़ा आगे का सोचा जाए, और मोस्ट प्रोबेबली उतना नहीं तो पार्शियली, क्योंकि एट अ पॉइंट जब हमें उनका एडमिशन लेना है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट नहीं होगा, कलेक्टिविटी पहले से प्लान नहीं होगा, तो ही नीड्स टू कॉम्प्रोमाइज फॉर हिज किड्स related to the college. If it is in higher education, related to college. If it is in pre-primary, related to the schools. Because nowadays, if you see that donation is higher and higher, increasing as per the inflation. Right. So at that time, ऐसे scenarios में अगर हम partially, completely planning नहीं होता है, क्योंकि कभी ना कभी circumstances आते हैं। अभी हमने कुछ ही साल पहले देखा, हमें कोविड पेंडेमिक मिला, ठीक है, जहां पर लोगों की पूरी सेविंग्स खत्म हो गई, ठीक है। तो वैसे सिनारियो पे एटलीस्ट वो फंड्स हम यहाँ नहीं तो यहाँ यूज कर सकते हैं। सेविंग कभी हार्म नहीं कर सकती। एग्जैक्टली माइंड में होना चाहिए कि कितना आपको सेव करना है। आप बोल रहे कि आपने अपने बेटे की स्कूल एजुकेशन के लिए सेव करना स्टार्ट कर दिया, तो जब आपने उसकी स्कूल एजुकेशन की रिसर्च करनी स्टार्ट की थी कि ये स्कूल सही है या फिर वो स्कूल सही है, तो जब आपको कॉस्ट पता चली तो क्या वो कॉस्ट बहुत ही शॉकिंग थी आपके लिए? और क्या वो कॉस्ट जानने के बाद आपको अपनी सेविंग्स में एडजस्टमेंट करना पड़ा कि मे बी यू वर एमिंग फॉर X number of amount, but then you found out a cost and then you had to increase the amount? क्या ऐसा कुछ experience हुआ? Yeah, it's shocking because अगर देखा जाए एक कॉमन मैन मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अगर आप देखोगे जहाँ पर सिर्फ स्कूल फीस ही बताया जाता है 35 to 40,000 फॉर प्री प्राइमरी, ठीक है, तो उनके लिए वो शॉकिंग होगा, नॉट इवन फॉर मी। जिनके लिए वो है वो, बट जिनका जो ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलफेट है, उनको इट विल नॉट हार्म कि वो अमाउंट शॉकिंग हो। राइट। एक कॉमन पीपल के 35,000 इज वेरी हायर अमाउंट, बट जो ऑलरेडी स्टेबल है, जिनका ऑलरेडी सेविंग्स है, ठीक है, अच्छा इनकम है, ठीक है, तो उनके लिए 35 अमाउंट इज नॉट मच हायर, उनके लिए वो नॉर्मल रहेगा। हाँ ठीक है 35 ना, करवा दूंगा, राइट। सो माइंड टू माइंड डिपेंड करता है, इनकम टू इनकम डिपेंड करता है। So you must have picked up a lot of
मनी मैनेजमेंट स्किल्स, सेविंग स्किल्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, वो स्किल्स जो आप अपने बेटे को भी देना चाहोगे, तो ऐसी वो क्या स्किल्स थी जो कि आपको लगता है कि आजकल के जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी? ऐसा कुछ मतलब हैवी पॉइंट तो नहीं है, बट ये बता सकता हूँ कि मतलब मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को, सिस्टर्स को, ठीक है, कि उन्होंने एक एक पेनी, सिंगल पेनी को बहुत वैल्यू दिया है, ठीक है। सो सेम लेगेसी, सेम लर्निंग मैं अपने बच्चों को देना चाहूँगा. राइट नाउ आई हैव वन सन, माइट बी इन फ्यूचर डॉटर और वट एवर सन, सो it will be continue that we should at least value a single penny, whatever it is. Yeah, exactly. Value your money. That's a very great point. So it was amazing having a conversation with you, Waqar, and your story is very inspiring. Thank and you. the experiences you've had, I'm sure you'll learn a lot, and you'll provide a great future for yourself. Thank you. So thank you so much for coming. Thank you for joining us for yet another episode of Chasing Dreams with EduFund. We'll be coming back to explore more financial stories of Indian parents, and we'll give you more financial tips. So stay tuned for that and have a great day.